Okay, students, in today's class, we are going to have our third session about paragraph writing. In the previous classes, we started from the very beginning. We discussed writing, we discussed important parts, we discussed some mistakes, we discussed some important traits or characteristics which may bring strength in the composition of a paragraph. But right now, what we are going to do, we will be talking about the important principles of paragraph. पैराग्राफ को बनाने के लिए जो खास असूल है उन पर अभी तक हमने बात नहीं की, और उन पर बात कर देने के बाद जितनी बातें पहले गुजरी दोज विल डेफिनेटली बी वेल एलेबोरेटेड, उनकी जो वजाहत है वो और बेहतर तरीके से होगी। प्रिंसिपल्स के अंदर जो सबसे पहली प्रिंसिपल है वो है यूनिटी। व्हेन यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए पैराग्राफ यू से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बिलोंगिंग टू वन थीम। इस बात को याद रखते हुए जरा आगे देखिएगा, यूनिटी इन ए पैराग्राफ स्ट्रक्चर paragraph structure refers to all the sentences and ideas in a paragraph fitting together to form a cohesive whole. I mean, one unit, one idea, one theme, one subject. And it indicates that all of our points are connected to our main ideas and are unified in support of it. A paragraph is said to have unity when all of the sentences in a paragraph relate to the main idea or topic sentence. Simply, when you talk about unity, what it really means, whatever you are writing, whatever sentences or whatever may be the number of sentences, all should be giving information about the topical sentence, key sentence, opening sentence. If any sentence that is irrelevant, that is not related to that theme, that is not giving information about that particular sentence, it will perform some role in the composition or compendium of sentences, but will not be performing any role in giving information about that single idea or theme. So when they are brought together, जब आप इन सबको इकट्ठा करते हैं और सबको जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि एक दरख्त से उगने वाली ये तमाम शाखें हैं। ज़ाहिर बात है, अगर एप्पल की बात की जा रही है तो दे ऑल विल बी रिलेटेड टू एप्पल। आप अनार की बात करें, आप अंगूर की बात करें, मैं फलों की मिसाल दे रहा हूं कि एक दरख्त से उगने वाले फूल या एक फूल से उगने वाले या एक पौधे से उगने वाले फूल एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपके एक टॉपिकल सेंटेंस से नीचे आने वाले सेंटेंसेस का ताल्लुक भी उस ओपनिंग सेंटेंस से होना चाहिए जिसको लेकर आप पैराग्राफ में आगे चल रहे हैं। आगे चलिएगा बेटे, अगली चीज है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है इन पैराग्राफ राइटिंग? कोहेरेंस implies that all of our contributions come together to make a whole. पहले तो वही बात की कि सारे के सारे एक होल बनाए। नंबर 2, coherence in writing aids readers in understanding how one point leads to the next. देखें, ये एक है लॉजिकल सीक्वेंस। कोई चीज कहां से शुरू हुई, पॉइंट 1 2 3 4। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो चीजों की होने की जो तरतीब थी उनको अपने पैराग्राफ में इंसर्ट करने की तरतीब भी अगर वैसे ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नरेटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके अंदर आप लिख रहे हैं एन एक्सीडेंट, अ टेरिबल एक्सीडेंट, अब आप उसको अगर बयान करते तो शुरू वहां से ही करेंगे जहां से आपने स्टार्टिंग डिटेल्स देखी, ऐसे हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, यूं, और फाइनली आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस। कहता है द यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स कंजंक्शंस इन एन इफेक्टिव टेक्निक या इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू प्रमोट कोहेरेंस. Coherence also means that the ideas in a paragraph flow logically from one sentence to the next. A paragraph is said to be coherent when the ideas in a paragraph are presented in a clear and logical order. So the transitions between sentences help the reader understand how the ideas are connected. Together, unity and coherence help to create a paragraph that is easy to understand and follow. When a paragraph has both unity and coherence, the readers can easily grasp the main idea of the paragraph and see how it's supported by the details and examples provided. दो चीजों को बड़ा मलहूज़ खातिर या ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामी समझेंगे आप। वेरी फर्स्ट थिंग, यूनिटी। तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं वो रिलेटेड होंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, एक ही आइडिया। लेकिन बेटे जो अगला पॉइंट है दैट इज आई मस्ट से रादर मोर इंपॉर्टेंट। वो क्यों? आइडियाज इकट्ठे कर लेना आसान हो सकता है, लेकिन आइडियाज को वेल ऑर्गेनाइज करना, उनको उनका मकाम देना, उनको उनकी जगह पे रखना, ये जरा थोड़ा सा क्रूशल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक आम राइटर, एक आम स्टूडेंट जब वो लिख रहा होता है
वो आइडियाज या सेंटेंसेस तो क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, लेकिन जब आप उसकी प्लेसमेंट पे आते हैं, आप उसके ऑर्डर पे आते हैं, आप उसकी लॉजिकल प्लेसमेंट जब करने लगते हैं, वहां पर आपके आइडियाज जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। और यही मकसद है कोहेरेंस का कि आइडियाज को ना सिर्फ एक होने की जरूरत है एक थीम के साथ, बल्कि एक थीम के साथ साथ इनका ऑर्डर भी वैसा ही होना चाहिए जैसे ये आम रूटीन में हुए, यानी दे शुड बी रिटन एज दे हैपेंड। फॉर एग्जांपल अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके आइडियाज की तरतीब भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दे मस्ट बी पासिंग थ्रू जस्ट लाइक द बीट्स थ्रू द नीडल, कि बिल्कुल एक फ्लो चलता रहे, एक तरतीब नजर आए। अगर आप आइडियाज को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा कि आपके आइडिया, जो आपका आइडियाज हैं या आपका पैराग्राफ है, इसको बेटरली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाएगा। आगे चलिएगा, जरा एक ग्राफ देख लीजिए, कहता है यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी इन राइटिंग मीन्स दैट ऑल द पॉइंट्स वी मेक आर रिलेटेड टू अवर मेन पॉइंट। आसान कर रहा हूं। दे आर यूनिफाइड इन सपोर्ट ऑफ द मेन पॉइंट। जब आप यूनिटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज लाजमन होनी चाहिए कि मैं जितने भी सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फ्रेंडशिप, तो जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका ताल्लुक फ्रेंडशिप से ही होगा। ये तो है यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप बात करते हैं कोहेरेंस, कोहेरेंस राइटिंग इन राइटिंग मींस दैट ऑल ऑफ आवर सपोर्ट connects to form a whole. Coherence in writing helps reader to see how one point leads to the another. Individual ideas should be connected to make a clear whole. A good way to improve coherence is to make the usage of transitions. एक आइडिया से दूसरे आइडिया, दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया, तीसरे आइडिया से चौथे आइडिया में जब आप मूव करते हैं, उस मूवमेंट के लॉजिकल फ्लो को, जिसमें पढ़ने वाले का एक मिनट भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आप समझ लें कि आप एक अच्छा पैराग्राफ राइटर बन चुके हैं। आइडियाज इकट्ठा करना एक अलग चीज, आइडियाज को इकट्ठा करके तरीके से लगाना, मैं यूं कह सकता हूं कि आप एक खूबसूरत सा हार बना रहे हैं, आपके पास मुख्तलिफ बीड्स हैं, ये बीड्स आपके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स या आइडियाज हैं, और आपका जो मेन आइडिया क्या है, नेकलेस, या आपने कोई नेकलेस बनाना है, तो आप उसको बनाने के लिए अब आपके पास जो बीड्स या आपके पास जो पल्स हैं, इनको जो पिरोना है, इनको जो ऑर्डर से आपने लगाना है, डिजाइनिंग मैनेजमेंट यहां से बनेगी। तो जितना जरूरी एक नेकलेस को बनाने के लिए बीड्स की और पल्स की तरतीब जरूरी है, उतना ही पैराग्राफ को बनाने के लिए कोहेरेंस जरूरी है। इसको कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, यानी जिस तरह जो चीज हुई उसको उस तरह लिखना। आगे चलिएगा, यूज ऑफ लॉजिकल ऑर्डर्स इन पैराग्राफ स्ट्रक्चर। मैंने उसी बात को थोड़ा आगे लगा। पैराग्राफ ऑर्डर रेफर्स टू द पैटर्न इन विच वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज इन राइटिंग। It matters to be aware of what comes first, what comes next, and what comes last, what last in good paragraph order. ये वही बात आ गई तरीके से एक आइडिया से दूसरे आइडियाज में। अब ये तीन चीजें आ गई तो आप कहते हैं सर तीनों को अलग करें, यानी आपने तीन बातें अब कर दी। एक आपने यूनिटी की, तो यूनिटी का मतलब एक थीम से ताल्लुक रखने वाले तमाम सेंटेंसेस। कोहेरेंस का मतलब इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि फ्लो कायम रहे। और ऑर्डर ये कहता है, लॉजिकल ऑर्डर, कि भाई अब आप इस तरजीब के अंदर फ्लो को तो कायम करें, लेकिन कुछ इस तरह से कायम करें कि जिसका जो नंबर बन रहा है, जिसकी जो जगह बन रही है, उसको वहां पर लगा दें। ठीक है, आगे। अच्छा बेटे, लॉजिकल ऑर्डर इन अ पैराग्राफ, इसको भी सीख लो कि इससे कहने का मतलब कि इसकी फर्दर एलाबोरेशन क्या करना चाह रहा हूं। रिस्पेक्टेबल फ्रॉम टाइम ऑर्डर, कहता है इट इज यूज्ड टू राइट अबाउट इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अरेंज पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस व्हेन दे हैपेंड। पहली चीज जो आपने दिमाग में रखनी होगी कि भाई क्या चीज, जो चीज आप लिखने जा रहे हैं वो कब और किस वक्त हुई, पहले ये हुई या वो हुई, पहले जो चीज हुई है उसका वक्त। एक चीज स्पेस ऑर्डर, कह रहे यूज स्पेस टू ऑर्डर डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और पीपल, अरेंज आइडियाज सो दैट योर रीडर्स पिक्चर योर टॉपिक द वे यू सी इट। उसके बाद आपने स्पेस, पहली बात टाइम कब हुआ, दूसरी बात उनको उस जगह पे रखना जैसे जैसे लोग इसमें आते गए, जैसे जैसे चीजें इसमें होती गई, और तीसरी बात है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, आपको यह भी पता है कोई चीज कब हुई, आपको यह भी पता है इसमें लोग कौन थे, कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ, और तीसरी बात क्या है कि मेरे इस इवेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं किस पॉइंट को किस हिसाब से एडजस्ट करूं। यह है तीसरी बात, द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यूज ऑफ ऑर्डर इंपॉर्टेंस टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट। आगे चलिएगा, वैरायटी, most probably the last thing and the most important thing. How do I use sentence variety? Can I combine sentences? Don't use all simple sentences. This makes your writing choppy. देखें, अगर आप किसी के इंटरेस्ट को कायम रखना चाहते हैं
तो आप अगर एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से, पहली बात तो है कि रिपीटिशन बहुत होती है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो उसी को पकड़ के रखा हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो उसी को लेकर चल रहे हैं। आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, यूज टू, मस्ट, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, इन ऑर्डर दैट आप मुख्तलिफ किस्म की कंजंक्टिव एडवर्ब्स, आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करें, ताकि स्ट्रक्चर जो सेंटेंसेस का ना वो भी बदले, ताकि सेंटेंसेस के अंदर वैरायटी हो तो पढ़ने वाले का ध्यान और चेक करने वाले का ध्यान उससे ना हटे। अगली बात, चौपी, वी वेंट टू द मूवीज, वी वेंट आउट, ईट, वी कम होम, वी वेंट टू बेड। सारे सेंटेंसेस क्या है? एक ही टेंस पे मबनी है। क्या कह रहा है? कंबाइन independent and dependent clauses to create compound and complex sentences, also use transitions। ये पुरानी बात है। कह रहा है we went to the movies and then we went out to eat, after that we came home and went to bed। गौर कीजिए, इधर देखिए, after that, then, मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस को यूज करने के बाद एलिप्सिस का मुजाहरा किया, यानी ये एक ही बात एंड बट या फुल स्टॉप्स को खत्म करने के लिए, तसलसल कायम करने के लिए कंजंक्टिव एडवर्ब्स लगाए गए। आगे चलिएगा। अच्छा बेटे, ये ग्राफ्स आपके सामने बना हुआ है। ये किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दी हुई है। कहते हैं ये सिचुएशन है, इस पर आप अपने ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर या पैराग्राफ जब लिखें तो आप पहले ये देख लें वो क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट and write a paragraph in about 100 words describing how a book list is prepared for academic sessions in schools or institutions। अच्छा, उसने क्या कहा? given question, flow chart, specimen, copies given to schools, subject teachers receive and read them, and merit of books discussed by teachers, books recommended, institution receives them, books placed before the academic council approves them, book list prepared, पॉइंट्स आल्सो गिवन विद क्वेश्चन। उसने ये पॉइंट्स भी दे दिए कि लो भाई ये पॉइंट्स है, जरा अब इनको आप तैयार करके बताओ। अब जरा गौर कीजिएगा। आंसर, सबसे पहले क्या चीज है? टाइटल ऑफ प्रोसेस। देखो, अगर पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा, अगर मैं 4-5 सेंटेंस, अगर एक पैराग्राफ आपके पास अभी आने वाला है जिसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, उसका टाइटल आप बनाएंगे। अब उन्होंने जो बनाया वो देखिए, कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बुक लिस्ट, टाइटल ठीक है। उसके बाद आप बताओ इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ओपनिंग पैराग्राफ, ये रहा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ओपनिंग पैराग्राफ, की सेंटेंस, आप इसको कह लें टॉपिकल सेंटेंस। क्या कह रहा है? A book list which is given to successful students after the publication of annual examination results at a school is prepared in following ways। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये बुक लिस्ट की बात हो रही है, ये एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है स्टूडेंट्स की। अब हम किस पर फॉल कर रहे हैं? सेकंड के बाद मेन पैराग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? गौर कीजिएगा। फर्स्ट, publishers send specimen copies to schools। आपको पता है हम इसको क्या कहते हैं? जिसमें आपका रिजल्ट आज को कहते हैं गजट। गजट में हमने सारे रीजन को नहीं देखना होता, उस गजट के अंदर आप अपने स्टूडेंट्स के जो है अच्छे जो टॉपर्स हैं या अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उसको निकाल लेते हैं। अब आप उसको सेट करते हैं किस तरह से? तरतीब बात, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, ये वो बात हो रही है। कह रहा है द सब्जेक्ट टीचर्स रिसीव एंड गो थ्रू देम। हर टीचर को अपना सब्जेक्ट मिल जाता है अगर वो सब्जेक्ट वाइज बना रहे। नेक्स्ट, ये क्या चीज है? ट्रांजिशनल डिवाइस। दे सिट टुगेदर विद द कॉपीज टू डिस्कस द मेरिट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द बुक्स। नाउ दे रिकमेंड द सिलेक्टेड बुक्स टू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु कलेक्ट्स द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स। अच्छा, दो चीजें हो गई, इस पे दो बातें आ रही हैं। मैंने दो मिसालें जरा अलग अलग दे दी। एक गजट की बात करो, अगर रिजल्ट की बात कर रहे होते तो आप कह सकते थे कि आप उसमें से सिलेक्ट करते तो तब भी स्टूडेंट्स की नॉमिनेशन देखते। लेकिन इस वक्त मैं इस बात को यह कह सकता हूं कि यहां पर ये आपकी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक बुक शेल्फ बना रहे हैं और उसके अंदर किताबों की कलेक्शन हो रही है और उसकी बुक लिस्ट कैसे बनानी है, हम उसको कह सकते हैं कैटलॉग भी कहते हैं उसको। जब आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं उसमें नंबरिंग होती है, कोडिंग होती है बुक्स के अंदर। अच्छा, कह रहा है these books are then placed before the academic council meeting. The council approves these particular books after discussion. The list of books is next sent to the press for printing. Now the book list is prepared and served among students after they have been promoted to higher classes. New books are bought from the market on the basis of the book list. अब इस पैराग्राफ को अगर आप चेक करें, what do you think? Is it a well organized paragraph or any sentence is irrelevant? वेल ऑर्गेनाइज। इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा गया क्योंकि इसको, इस स्पेसिमेन को बेहतर बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसको आगे रखा गया, एक प्रेजेंटेशन में रखा गया। तो पहली बात ये कि बेटे ये एक पैराग्राफ है। अब एक अलग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, आगे बढ़िएगा। तीन चीजें फिर से देख लीजिए।
जब हम पैराग्राफ लिखेंगे, मैं आपको पहले से फिर से इसलिए रिकॉल कर रहा हूं चीजों को, क्योंकि अगला जो स्लाइड आने वाली है वो एक अनसॉल्व पैराग्राफ है। पहली क्या चीज, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैरा, फिर आप आएंगे डिस्क्राइब डिटेल्स, सेकंड पैरा, उसके बाद आप आएंगे कंक्लूजन, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पैरा, लाइन हो सकती। अच्छा बेटे गौर कीजिएगा भाई, यू आर सपोज टू रीड आउट दिस पैराग्राफ वंस, जरा गौर कीजिएगा। Tourism is one of the fastest growing sectors in the global economy, and it is expected to continue growing at a significant rate throughout the next decade. This sector has long been heralded as a potential driver of growth for economies around the world, and there are many reasons why this is true. First and foremost, tourism provides much needed jobs and contributes significantly to national GDPs. It's also an important source of revenue for large and small businesses. Moreover, it generates considerable sums of tax revenue worldwide. In short, tourism has many benefits that go far beyond simply providing people with income or generating new business अपॉर्चुनिटीज। पहली बात सवाल करूंगा मंसूर, वुड यू माइंड टेलिंग मी, इस पैराग्राफ में आप बता सकते हैं ओपनिंग लाइन क्या है? शायद नहीं, यकीनी बात करनी है। आप लोग में से कोई बताए कि भाई पैराग्राफ किस बारे में है? पहली बात, व्हाट शुड बी द टाइटल? टूरिज्म। टूरिज्म लाइन क्या है? आपको कैसे पता चला, या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको ये गेस कैसे आपने कर लिया कि ये पैराग्राफ जो है टूरिज्म के बारे में? द फर्स्ट लाइन। तो इसमें ओपनिंग लाइन या टॉपिकल लाइन क्या होगी? इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। अगर यहां तक भी पढ़े तो ये भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी कई जगहों पर देखिए तो कई मौकों पर हमें ऐसा मौका मिला जिससे पता चल रहा था कि दिस इज बेसिकली अबाउट टूरिज्म। अच्छा, उसके बाद यहां से आपकी शुरू हो गई सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स को इंसर्ट करने का तरीका तो जरा देखिए। पहले क्या लिखा यहां से, दिस सेक्टर हैज लॉन्ग हेराल्डेड economies and there are many reasons why it is. पहले तो well utility or I must say superbly या super or well used or very well organized use of or insertion of punctuation marks, punctuations को अच्छा फिट किया। दूसरी बात, first and foremost आ रहा है किस पर? ट्रांजिशनल डिवाइसेस पर। एक, टूरिज्म प्रोवाइड्स मच नीडेड जॉब्स एंड कंट्रीब्यूशन। अगर मैं इस सेंटेंस को देखता तो तब भी मैं अंदाजा लगा सकता था कि दिस इज बेसिकली अबाउट टूरिज्म। अच्छा, इट इज, आगे बढ़ते, मोर ओवर, फ्लो ऑफ थॉट को नहीं तोड़ा, वो एंड नहीं लगा रहा, वो बट नहीं लगा रहा, वो और नहीं लगा रहा। अच्छा, इधर देखिए, इन शॉर्ट, और कीजिएगा, इन शॉर्ट, और आगे कहता है मैनी न्यू बिजनेस लाइक अपॉर्चुनिटीज। तो इससे साबित हुआ कि थोड़ा बहुत आपका माइंड बना है। And tomorrow what I am going to do with you people, I will be bringing some unsolved collection of sentences. आप पहले उसको पढ़ के उसमें से हाईलाइट करेंगे कि भाई इसका ओपनिंग सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। उसके बाद आपको टाइटल्स दिए जाएंगे, 2-4 पढ़ने के बाद आप खुद एक पैराग्राफ जनरेट करेंगे, और उसके बाद यू आर सपोज टू डिसाइड कि आपके पहले लिखने में और अब के लिखने में कितनी तब्दीली आई, या थोड़ा बहुत आपने इंप्रूव किया, ये 10 से 20%, 20 से 30% पे आप आए या नहीं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल बी हैविंग समथिंग एल्स। थैंक यू। स्टॉप कर दो, बंद कर दो। चलो।